12 to 15 years of work experience. And then money has stopped giving you plateau. I have the greatest respect for prostitutes, but even prostitutes make money. मेरे को 10 केस पेंडिंग नहीं चाहिए, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं उस मॉरल फाइबर का नहीं आता हूँ. What is your message for the lazy people? मांझा अब लपेटना चालू कर दे बेटा, नहीं तो पतंगुल हो जाएगी. Supplement, which one is totally overhyped? वे प्रोटीन और क्रिएटिन सब ओवर हाइप्ड है. When you were looking at the mirror, was it the weight of the mirror or was it the weight of your mind? तन मन धन का मैं अभी हूँ पहलवान. मेरे में शक्ति बाकायदा है, 10-15 आदमी के बराबर है. ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरा स्वाभिमान है. माथे पर बर्फ और मुंह पे कुछ हद तक ताला आज के जमाने में वो रखना पड़ता है. So be good to nerds. You never know when they might be your boss. What is the deadlift of life? I am under the VVIP protection of the Lord Bajrang Bali. "43 years of becoming, from breaking to building. Some are born in the spotlight, others walk through fire to earn their own light. He was the quiet one the world overlooked. The one who didn't fit the mold, and when you don't fit the mold, you don't explain. You rise and show the world what a metal mindset is all about." Today I sat down with a man who owns this mindset, a man who turned the pain into power, discipline into devotion, someone who's lived the truth of transformation beyond filters and fads. So if you're someone who is searching for a reason to start again, the real mental switch behind body and life transformation, or proof that strength is built in pure silence, then this episode is your answer. This conversation is your mirror. Welcome to the PBT show. We are meeting the unfiltered, unbroken, unapologetic, the awesome Rahul Bhatt. Let's deep dive. Hi Rahul. Welcome to the PVT Show podcast, where we have conversations that truly energize one's mind. Namaste. Thank you for having me, Poonam ji. So I want to begin with that story. I don't think that thing is out anywhere. हाँ. How did you and Vijay? What I know is that you both are, if it is fair to say, prodigy of Kezad Kapadia, right? Both of you. हाँ, मतलब मैं आपको संक्षेप में बोलता हूँ. मैं 5 फिटनेस एक जिम हुआ करती थी जुहू में. हाँ. मैं उस जिम का ब्रांड एम्बेसडर, पोस्टर बॉय हुआ करता था. मतलब मेरे बाकायदा मेरे पोस्टर लगते थे. अभी कैजाद कपाड़िया, हाँ, मैं एक तरह का मैं अपना आइडियोलॉजिकल मेंटर मानता हूँ. मेरी उनके साथ मेरी शुरुआत हुई थी एज अ मेंटर, मगर देन इट बिकेम इनटू अ ट्रेनिंग पार्टनर. एक तरह का बराबर का लेन देन हो गया. क्योंकि मैं शक्ति और पैशन के कोशेंट में, आई मिस हिम, ही इज नो लॉन्गर हियर विद अस, रेस्ट इन पीस, बट मैं बराबर का था. तो और वो बंदे, मैंने फॉर वॉट एवर इट इज, उसने मेरे में योग्यता और उसने मेरे में टैलेंट देखी. He was a spotter for sure. Yes. He could. मतलब कौन हु इज अ फर्स्ट क्लास कॉपी, कौन रियल है. और देखो, मैं वजन उठाता था. उसको कौन तेरा बाप है, कितने करोड़ रुपए है, कौन सी गाड़ी है, उनसे वो पारसी था वो. करेक्ट. तो बड़ा सीधा बंदा था वो, सिंपल एंड पहलवान था. तो आई यूज्ड टू लिफ्ट, आई कुड लिफ्ट भयंकर. तो उससे आई बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द जिम. एंड आई वॉज ब्रांड एम्बेसडर, एंड ब्रांड मतलब कटआउट लगते थे, एंड वो था, शान थी, प्रतिष्ठा थी उसमें. एंड आई रिमेंबर विजय स्टार्टेड हिज अप्रेंटिसिंग इन हिज फिटनेस करियर. उसने कोर्स कर रखी थी उनके अंडर, एंड ही वॉज वर्किंग देयर एज अ सिंपल जिम इंस्ट्रक्टर. उसमें भी कोई एटीट्यूड, नो कोई घमंड नहीं था. दैट आई रिमेंबर व्हाट एवर माई मेमोरीज ऑफ हिम. और फिर ट्रेनिंग साथ में करते थे, और आइडियोलॉजिकली वो भी बहुत वो पढ़ने का शौकीन था. एंड वेरी सिंपल हम्बल गाय. उसको कुछ पढ़ी नहीं है, विद ऑल द वर्ल्ड स्ट्रैपिंग्स. तो आइडियोलॉजिकली वो चोर गिरगढ़ को पहचानता है, वो एक है मुहावरा. तो एक तरह का वो था. तो योर एनर्जी लाइक अट्रैक्ट्स योर एनर्जी,
एंड आई सेड मानना पड़ेगा जो भी है, एंड आई हैड टू गेट हिज रिस्पेक्ट. देन वी वर ऑन एंड ऑफ, बट हियर वी आर टुडे. Absolutely. And, The first time I met you, in fact, I want to mention this that I'm referring to the first time we happened to speak, you know, and you just now use the word energy. Our first conversation was about prefrontal cortex. We spoke about subconscious mind. We spoke about energy. We spoke about your tattoo, which I am going to be uncovering for my audience little later. वो तो पूरी But- हिंदुस्तान को मालूम है. हाँ, लेकिन बहनी बहन, हाँ. मेरे लेंस से हम वापस उसको देखेंगे. पॉइंट इज दिस, it is seldom known that जी. somebody who comes with this kind of privilege, and I'm using the privilege without getting into the privileges, you don't need any introduction. जी. And there is enough that you have spoken. There is all about your life which is there on the internet. जी. But I think there is one aspect that I noticed that day. जी. And that is to be discovered, that is to be spoken about, and that is to be explained by you today. And I'm talking about the boy, the battles, and the becoming. Well, now I'm a man. Okay. But 100 kgs, 5 foot 11, 6 feet on a good day. वहाँ जाते हैं ना जब और 122 थे. तन मन धन का मैं अभी हूँ, मैं Yes. पहलवान. Yes, of course. Could you reflect back to that 5-year-old boy? हाँ. You know, that boy, the battles. हाँ. What changes in your mind? I mean, when you were looking at the mirror, was it the weight of the mirror or was it the weight of your mind that what went inside the head that you said 122 kgs, I need to do something about myself? Okay, very excellent question. You want to know the man, you have to Yes. know the boy. Absolutely. ये तो बेशक ये सच है ये. To be very honest with you, to give you a straight answer, संक्षेप में, it was always the mindset बदली. 5 साल का था, लो सेल्फ एस्टीम थी, ओबीस लड़का था, डिसलेक्सिया का मैं शिकार था. तभी लोगों को मालूम नहीं था कि डिसलेक्सिया क्या होती है. लॉन्ग टर्म मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है. शॉर्ट टर्म मैथमेटिक्स में कभी 5वीं कक्षा के बाद, कभी 6वीं कक्षा के बाद में अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा में कभी पास नहीं हुआ मैं. और फिर उसके बाद देन सब्सिक्वेंटली यू कुड ड्रॉप इट. तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज थी. घर का वातावरण नॉर्मल परिवार के जैसे कभी था नहीं. लाइमलाइट में तो हमेशा फैमिली रह चुकी थी, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है. बट उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे को एक्सपोजर बहुत मिला है लाइफ में. मैं मानता हूं एक साधारण इंसान से मेरे को एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला है. फिल्म सेट्स पे, पुलिस स्टेशंस में, कोर्ट्स में, आप सभी तो मानव शास्त्र का मैं एक तरह सा मैं वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ. Correct. तो पहले किताबें बहुत पढ़ता था, अब इंसान को मैं पढ़ता हूं और पढ़ लेता हूं मैं. तो शायद किताब ने मेरे को सिखाई कैसे इंसान How को to read people. पढ़ा जाता है. हाँ. तो एक्सपोजर मेरी बहुत थी. आई एट्रीब्यूट दैट टू माई. तो एक अनकन्वेंशनल लाइफ रह चुकी है. अनकन्वेंशनल पोशाक में, खाने में, दोस्ती में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं राजा के बेटे के साथ बैठ के खा सकूं. बट मैंने किया नहीं. नॉट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी कूल और अरे देखो वो मेरी कनेक्ट नहीं होती है. वो अगर मेरा कनेक्ट होता है किसी से तो होता है. जैसे आपने बात की थी एनर्जी की, वाइब की. आई बिलीव योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब कुछ हद तक. True. Absolutely. उसके वजह से हाँ कुछ गलत मेरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, बट रिग्रेट्स नहीं है. वो एडवर्सिटी ने मेरे को सिखाया है, बहुत सिखाया है. और एडवर्सिटी सिखाता है. अच्छा वक्त आदमी को कुछ नहीं सिखाता है. आप तो एंजॉय कर रहे हो ना? नहीं, वो तो कुछ नहीं सिखाता है. वो तो नहीं सिखाता. बुरा वक्त ही सिखाता है. तो वो जो बच्चा था 5 साल का, हाँ. जिसने अपने आप को 120, उस टाइम तो 120, you were 122 kgs. मतलब मैं आई टिप द स्केल्स एट 122. You tipped. हाँ, Yeah. टिप द स्केल्स. The baby say in weight training, it was your PR for. हाँ, PR, या करेक्ट.
उसके बाद फिर क्या हुआ, किसने बोला कि ये राइट नहीं है, हेल्दी नहीं है, या नहीं वो मतलब How वो did you snap? सेल्फ रियलाइजेशन एक तरह की हो गई थी वो, एंड आई सेड कि अब करना ही तो करना है. you know, there is a neuropsychological fact that you can only bring in change in your life. Any change is triggered by disgust. Was that the thing? नहीं डिस्गस्ट नहीं थी. नहीं था. नहीं आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, डिस्गस्ट कभी थी नहीं. डिस्गस्ट, हेट्रेड, नेगेटिव इमोशंस, एंग्स थी. गुस्सा कुछ हद तक था. गुस्सा मैंने पॉजिटिवली मैंने चैनल किया, और इसलिए आप पूछते कि यह तेरी शक्ति का राज क्या है. मेरे में शक्ति बाकायदा है, बहुत है मेरे में, 10-15 आदमी के बराबर है मेरे में. तो इसमें ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरा स्वाभिमान है. ये तेरा क्या है, तू स्टेरॉइड लेता है तो ये नहीं. तो मेरे शक्ति का राज, जैसे सैमसन था, उसकी शक्ति का राज था उसके बाल बराबर थे. तो मेरा गुस्सा, तो मैंने पॉजिटिवली गुस्सा चैनलाइज किया, नॉट इन अ नेगेटिव इन डिस्ट्रक्टिव वेज, इन अ पॉजिटिव वे. और कैसे हुआ, ये खुद हुआ. मेंटर्स मेंटर्स किसी ने मेरे को हाथ पकड़ के चलाया नहीं. हाँ, तो कुछ हद तक मेरे को ही करना पड़ा. मेरे को वो थोड़ा मार्ग बताने वाले जैसे कैसाद ने वे ट्रेनिंग का फॉर्म कुछ हद तक सिखाया. चलना तो आपको, ये डिसीजन तो आपका. हाँ, तो आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ K11. नो मैंने वो जो मेरे को याद है, और मैं अभी भी, मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है बोलना, वो मेरे कटआउट लगती थी कि राहुल इज अ प्रोडक्ट. नो, राहुल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिमसेल्फ. और ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है. One has to work hard to achieve that, no? हाँ, तो I am a product. I have worked on myself and I'm still working on myself every day in all aspects. People want to come and take credit. वो एक बार, अरे मैंने तो, you getting me? वो देखा है, और अभी समय आएगा. अभी इंटरमिशन हुई है. अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ये अभी तक ये you see, अभी तक जंग के मैदान में मैं उतरा नहीं हूं मैं. Pivot But अभी time. हाँ, तो it's about I was a product largely by myself, of myself. I don't. That is, Rahul, what is interesting in your story, you know. That is the reason I was chasing you, that we have to speak. Whatever I have seen, I'll tell you something. Usually before doing any podcast, you know, we have content teams. I would be sitting with them. I would look at the research. I will do my own research. And there is something which is called as, okay, how do we have to speak in a way that it aligns with what is the core outcome of the podcast, which is reflection of author's mind. Correct. You have been an author yourself. Correct. What I'm trying to say is, when it was you, there was no research needed. I was very clear that there is everything about this man that the world knows, right? You have been vocal about it. But there is something that I want to sit with you and help everyone, every young boy who is going to watch this. Because, you know, I could see the reflection. Jee. We are millennials. But then I could see in your life reflection of how a Gen Z is today. You have been very vocal about it. You have said that my childhood... नहीं, वही तो है. वो देखो, सॉरी टू कट योर शॉर्ट, बहुत से लोग मिसकॉन्स्ट्रू दैट एज न्यूरोसिस. मैं तो कहता हूं वल्नरेबल होना शक्ति की जरूरत है. इट टेक्स अ लॉट. यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो ये बहुत, ये ओनली अ वेरी सेल्फ अश्योर्ड मैन कैन डू इट. और मुझे किसी की इनसिक्योरिटी है ना, तो रूप रंग, ना तो क्या कमाता हो. मेरे को मालूम है कि मेरे शक्ति का क्या एहसास है. हाँ, घमंड बोले तो हाँ, आई टेक गेट प्राइड इन माई स्ट्रेंथ. Strength are different forms. Correct. Vulnerability is strength. Is also a strength. Let's talk about it's that. It's real strength. Yeah. Let's talk about So that. I have not chosen to lose my vulnerability and get corrupted by this world. मैं भ्रष्ट नहीं हो चुका हूं मैं. I have held on to my morals.
I could have very easily capitalized on lot of my so-called commercial family ये था, किया नहीं मैंने तो कभी ऐसा I lived with the adage कि मैं तो किसी का मैं तो साधारण जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। अभी भी लोग तुम क्या करते हो, मेरे जज में मेरे को पूछा था व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आई सेड सर मैं जिम शिक्षक हूं मैं। और मैं अपने इमिग्रेशन फॉर्म में भी अभी क्या लिखते हो, क्या करते हो, आई सेड मैं जिम शिक्षक था, हुआ रहूंगा। करेक्ट। दैट इज द कोर ऑफ मी। आई हैव गॉट प्राइड, आई हैव गॉट नो प्रिटेंस, आई नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट आई एम नॉट। You were the one chosen to do the biggest transformation in the celebrity space, though I never wanted to get into that route, but then I'm just mentioning because that's Yeah. very important, the whole world knows about it, Yeah. is Aamir Khan ji's transformation. Now, I want to mention that there may be several hundreds of trainers, but you know what is the difference between a trainer who's training and a transformation person who brings मैं आपको transformation? बोलता हूँ उसकी रीजन क्या वो थी, spiritually heavy होते हैं। उसकी रीजन क्या थी। आमिर ने जैसे मेरे परिवार के साथ उसने काम किया था, बराबर पिक्चर बनाई थी दिल एक ही मानता नहीं, Yeah. तो बचपन में उसने देखा था मुझे, ये मोटा बच्चा है, ये अंगूठा चूस रहा था, तो प्रैक्टिकली फिर उसने देखा कि उसने खुद पर इतना काम कर काम सका। किया है, और उसने साथ मेरे साथ, मैं एक बार किसी और एक कुणाल कोहली साहब को मैं ट्रेन कर रहा था ताज लायंस एंड में, और मैं कभी किसी के सामने से जाके मैं बाद में ओवर फेमिलियर नहीं होता हूं कि मैं फलाना ठिकाना का बेटा हूं और मेरा ये चाचा है और ये मेरा भतीजा है और मेरे इतने, मैं कभी वो मेरे फितरत में नहीं है, मैं हूं नहीं वैसे। तो वो सामने से आके उसने मेरे से बात किया और एक जेन्युइन एक इंटरेक्शन हुई, वो करेक्ट, एक ऑनेस्ट इंटरेक्शन हुई, और वहां से फिर कहानी चालू हो गई कि विल यू बी इंटरेस्टेड इन कमिंग ऑन बोर्ड, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। You keep saying this thing that it's not about hiring a trainer in fitness industry. It's about two people's vibes matching, energies matching, and then you can. हाँ, I believe ये that कैसे होता है? ये मतलब high net worth individuals don't buy personal training, they buy personal trainers. कुछ हद तक ये देखो, ये आपका जमना चाहिए। कैसे डिकोड करे जमने को? जमने का मतलब आइडियोलॉजिकली, नाउ इफ यू डोंट लाइक माई फेस फॉर वट एवर रीजन्स, आप मेरे साथ काम नहीं करोगे। इफ यू डोंट लाइक द वे आई स्मेल, यू विल नॉट वॉन्ट टू वर्क विथ मी। ये मैटर बहुत करता है, ये छोटे छोटे चीज, ये कितना तुमने डिग्री पाला है क्या मालूम है, ये सब बाद में देखेंगे। You know, this is very important aspect which people don't understand in the corporate world also. Because the first impression is actually how you are walking, how you are approaching, how your handshake is. You want to describe this from fitness professionals' point मतलब of मैं view? इसको बोलते हैं साइको न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। Yes. ये लॉ एनफोर्समेंट को सिखाई जाती है। हाँ. मतलब चाल से बता देंगे कि ये इसकी ऑक्यूपेशन ये है, ये इसमें आया है, ये उसमें आया है, ये जो प्रोफेशंस की ज्यादा ह्यूमन ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है ऑन अ डेली बेसिस, एंड मोर विद द बैड एलिमेंट। करेक्ट। ओके, जो 99% आप, तो ये तभी ये मास्टर होता है ये प्रोफाइलिंग में, कि इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, ये नाकाब पहन रहा है, ये मतलब रियल बनने का नाटक कर रहा है, और ये हकीकत में है, ये है। Now that is what is called wisdom. Wisdom is not seeing things, it is seeing through things. See through people. Your everything is prima facie, perception. Correct. On the surface. Yeah. Correct. And on top of it, people put an extra layer because they don't want to open up. But unfortunately, that is the way the game is played. अभी आपको खेलना पड़ेगा कुछ हद तक, but ये एक हद तक आपको इट विल हेल्प यू गेट इन द डॉ, यू नो, लाइक आपको गोल स्कोर करना है तो आपको बॉल डी में लाना पड़ता है बिफोर यू स्कोर अ गोल, तो मे बी, बट आफ्टर दैट इट इज योर एक्सपर्टीज, योर टैलेंट, योर हार्ड वर्क एंड योर सिंसियरिटी टू योर जॉब। How do you build that? And I don't believe in brands. उन्हीं अब बोलते ब्रांड कैसे बनाओ, ये पैसे फेंक के ये नकली ब्रांड है। ब्रांड इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। Yes, I agree. हाँ,
I agree. You have to be honest. मेरे को बैंड्रा के लोग जो क्या सोचते हैं मेरे बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दरभंगा, पानीपत, हाँ. गुजर समाज क्या सोचती है, हिंदुस्तान वो है। हिंदुस्तान बैंड्रा और जू नहीं है। True. वी आर वेरी वी गेट कि हमारी Caught up. ऑडियंस क्या है। हाँ, यहां पर कितने लोग हमारे बिरादरी हिंदी में बात भी कर सकते हैं, बताओ। मैं हूं बैंड्रा समाज का, ये हूं कैथलिक माँ का, ये हूं, मगर मेरी प्राथमिक शिक्षा आर्य समाज में हुई है। Wow. आई एट्रीब्यूट दैट। Yes. तभी आप इतना अच्छा हिंदी बोल पा रहे हो ना। मतलब कोशिश करता हूं मैं, दो इट्स नॉट अ मदर टंग। Yes. मेरी मातृभाषा नहीं है। पर हम कोशिश मातृभाषा तो हिंदी इंग्लिश है घर पे। Correct. बट कोशिश तो करता हूं मैं, बिकॉज इट इज Yes. you know Yes. it is your I believe it to be, you have to be pro-efficient. True. So, reflecting back to what was the drill? मतलब 122 के बाद वो, अगर कोई अभी मतलब आपको सुन रहा है बच्चा 122 जो के बाद overweight है। वो जर्नी चालू हो गई, और तब कोई सिखाने वाला गाइड करने वाला था नहीं। एग्जैक्टली तो कैसे किया? तो वो ट्रायल एंड एरर हुआ। जाता था जिम पे, वहां पर ट्रेनर्स ऐसे बैठ के वहां पर खड़े होते थे, ए चल मेरे को उतना 6,000 दे दे, उतना मेरे को दे दे, ये प्रोटीन का ये दे दे। वो सब तो मैंने वो क्या है वो खुद तजुर्बा कर चुका हूं मैं। दैट इज वो अभी सहानुभूति है। दैट इज व्हाई देयर इज वार्मथ इशूड एंड पीपल की वो अभी वो वार्मथ चली गई है जिम्स में। वो कैमरेडरी नहीं रह चुका है। यू गेटिंग मी? ये लोगों में like a buddy, like you know somebody who's with अरे you, मतलब caring वो आप for करे, you. वो हेल्प नहीं करेगा वेट निकालने डालने में यार। अभी कोई 300 किलो मार रहा है जो भी, गेटिंग मी? वो नोबडी, वो इट्स लाइक यू सी अ वुमन विद अ फ्लैट टायर, you should think, but if you're a gentleman you get off to help ना। go. वो है तो ये वो कैमराडरी, वो जिम कल्चर में सबको सिर्फ दिखना अच्छा, और दिखना मतलब शो पीस बस। देखेंगे बट यू नो वो Knowledge बात wise, आती है, जब बात आती है असल, जब 2 बजे रात पे जब खुद उतरना पड़ता है। हाँ. अभी समय ऐसा आ गया है, वी आर गेटिंग, यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। Absolutely. खुद Absolutely. का, हाँ, फिर तो आप सक्षम होने चाहिए ना सेल्फ रिलायंस के। सेल्फ रिलायंस इज द मंत्र। कैसे बने लोग सेल्फ रिलायंट? सेल्फ रिलायंट कैसे बने? पहले अवेयरनेस, या जागरूक हो कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। जो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता है, मैं नहीं बोल रहा है ऑब्सेशन, वो भी एक तरह का टॉक्सिसिटी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एक को 6 पैक एब्स और स्ट्राइएशंस चाहिए और 300 किलो का डेडलिफ्ट राहुल के जैसे उठाओ, सबको नहीं है। बट बेसिक अवेयरनेस है, होनी चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दैट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट you have self respect towards yourself, towards society. करेक्ट. A man has to be a capable man. He has to be able to be a good Samaritan, to be able to help people या in need, to help the helpless. या ऐसा ये मेरा मानना है, फिलॉसफी है। एब्सोल्युटली. रॉबर्ट ग्रीन आपकी लाइफ में कब आए? रॉबर्ट ग्रीन कब आया मेरे को? 48 लॉज ऑफ पावर पहली किताब थी उसकी। तो वो मेरे को मेरे डैड ने दी थी। वो क्यों हाँ, नहीं, वो ये मानना उसमें- पड़ेगा। और उसने बड़े हंसी से मेरे को ऐसा देखा और बोला तेरे को ये किताब बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? बिकॉज उसमें मैन्युपुलेशन, शक्ति, सिडक्शन, सबटरफ्यूज, हरामी कैसे बनना है, नहीं बनना है, वो सब उसमें बहुत साधारण तरीके से तौर पे वो लिखा है। और जो बाकायदा आपको अभी आप है लाइफ में आपको परवरिश करनी है, तो ये प्रैक्टिकली, बट ऐसा मेरा मानना है कि मैं इंसान ज्यादा सिखाता है प्रैक्टिकली। किताबें कुछ हद तक सिखाती है, हाँ, आपको प्रोसेस, आपकी IQ बढ़ा देगी, बट बियॉन्ड अ पॉइंट प्रैक्टिकल। मेरा मानना है कि आप वो अगर वो किताब पढ़ रहे हो और आपके लाइफ में वो हो चुका है, तो आप कनेक्ट करके रिफ्लेक्ट करोगे। हाँ, तो देयर इज अ सेइंग कि वो थियोरी विदाउट एक्सपीरियंस इज नथिंग, हाँ, बट एक्सपीरियंस विदाउट थियोरी इज वेरी इट डिफिकल्ट, इज बीइंग ब्लाइंड। इट इज बीइंग ब्लाइंड। आपने किया नहीं है, तो आई रादर हैव एक्सपीरियंस Yes. देन नॉट हैव थियोरेटिकल नॉलेज एंड नॉट हैव अ डिग्री, देन हैव अ डिग्री एंड हैव नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। So how is it going to do anything? तो ये है which people are forgetting today.
Correct. People are not forgetting. I'm just saying is that. I mean, people pay no heed to it, I believe. Yeah, but it's okay. not to make generalizations. Yes. Yeah. But there's not much of heed being paid to that both should be there or should not be there. Like for example, आप बता रहे हो ऐसे स्विमिंग होती है, आप नहीं सीख सकते ना. You have to get You into the learn pool swimming by swimming. by swimming, as simple as Correct. that. You learn deadlifting by deadlifting. Yes. You learn squatting by squatting. You learn acting by acting. Not by talking, by being on a set. Yes. And by, हाँ correct. Yeah. आप जितने भी आप स्ट्रासबर्ग के पास जाओ, किशोर नमित कपूर के पास जाओ, लॉर्ड फॉकलैंड के पास जाओ, you getting me? वो है nothing substitutes real world experience in life. So this is very beautifully said by you now, and the experiences you had. Yeah. We will not get into the experiences, but then if this Rahul today at 43 is reflecting back 4 decades of your life, right? Yeah. We are saying चलो 3 साल तक तो बच्चे को कुछ नहीं समझता. जी. There is so much of wisdom. Whenever I have spoken to you, जी. I don't see somebody who's just lifting 300 kgs and is a deadlift man. There is a very intelligent man who has lived life, experienced life, which is very important because there's so many people who are just living. Experience तो है ही नहीं. अभी तो the whole world is goody-goody. But what I'm trying to say is, when you get that experience, say for example, after 30-35 years, because those are your formative years are 18 to 20. तब तक अगर सब रोजी एंड गुड है और एकदम से 30 के बाद कुछ प्रेशर आया जी. तो आपके हिसाब से is the person going to be more equipped by the virtue of having that age on his side and maturity, or at before 20 if you hit something and you are experiencing, what do you think as per your experience could help people take up setbacks better in their life? Early age or delayed? No early age. It rather happens early when you have health and you have age. Because in the formative years you don't have time to do mistakes. So a mistake is, if repeated, a mistake. Yeah. Correct. तो ऐसा मेरा मानना है कि वो अगर जल्दी वो होगा तो बेहतर रहेगा. But life is you never see, none of us know. Now there's a saying, those who are born to hang don't drown. तो कहने का मतलब है संक्षेप में, वो does any of us know what is in store of us tomorrow? Medical calamity, legal calamity, जो भी है, Correct. कुछ we don't know. We might pretend we know. So how does one prepare for it? Question is that you prepare by first and foremost दुनिया से झूठ बोलो, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलो. Look in the mirror, देखो अपने आप को, face the devil, look him in the eye, rather than him come behind your back and stab you, haunt you. Yeah. So be real. स्कारफेस पिक्चर थी ना, इज डेट, उसमें लाइन थी कि नेवर गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू क्रिएटिंग अ मिराज. हाँ, काम करो, फल की इच्छा मत रखो. Any incidents from your life when you had to apply this wisdom? Simple work wise incidents, any? नहीं, वैसे तो हाँ काफ़ी रह चुके हैं कि वो अभी जैसे आई वुडंट ऐसा नाउ इन द नेचर ऑफ सेलिब्रिटी ट्रेनिंग आई एम बाउंड बाय नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स, ये सब है. तो कुछ जब आपको हर एक जब आपने कुछ किया है काम और आपको उसकी क्रेडिट मिलती नहीं है तो कुछ हद तक वो हाँ बुरा सबको लगता है. बट देन दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू बिकम used to it. Yeah. Then you are happy. So okay, this is very important. And because for my podcast also, the audience, my tribe is more from the corporate world, because by the virtue of so much of years, like over 2 decades that I've spent in that, तो मेरा tribe ही वही है, corporate and professionals. 2 चीज़ें motivate करती हैं at the initial stage of your career, and I'm picking this up. It is the money.
So you would see people jumping even for a small, little bit raise in the money, and you would want to chase that money. And then that money will stop giving you any pleasure because money is enough to take care of you. That is when you become little senior in your career. जी. So 12 to 15 years of work experience. And then money has stopped giving you plateau. Same thing. Even money can do that, huh? Then you're chasing for credit. Now, credit is very easy when you're in a junior position. This is the paradox. When you become senior... See, I don't mean to be disrespectful. I Yes. have the greatest respect for prostitutes. But even prostitutes make money. Yeah, yeah. Okay? Is their profession? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं मैं. Everybody has a right to living. I have the greatest respect. But पैसा वो भी कमाते हैं. Correct, बराबर? correct. तो ये मैं तो पैसे के लिए मैं अपनी मॉरल्स, अपना ईमान, अपने मेरे को खुश रहना है, मेरे को सुखी रहना है, मेरे को 10 केस पेंडिंग नहीं चाहिए, मेरे को 35 कोर्ट में हाजिरी नहीं देने, और मैं गेटिंग में किसी मैं वैसा नहीं हूं. मैं उस मॉरल फाइबर का नहीं आता हूं. मैं छोटा गाड़ी चलाता हूं, मैं कम कमाऊंगा, मैं खुश हूं. Correct. मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं नहीं कर सकता हूँ. और किसी और आदमी को की मेरे में इंटेग्रिटी में को बेच के मैं आई एम नॉट गोइंग टू सेल समबडी आउट. Absolutely. कि इसका नाम दे दो, ईडी का नंबर दे दो. मैं वैसा नहीं हूं. मैं But दुनिया में तो ये ये भी चलता है. बट ये दुनिया में तरह तरह के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के. हाइनास, जैकॉल, शेर, हनी एस बैजर, तो सब होते हैं ये गेटिंग मी. तो यू हैव टू बी एबल टू स्पॉट इट. इज What is your biggest top learning from Robert Greene then, when you read the book? Did you go through the whole book? In fact, you मतलब recommended इट one इज book. ये ऐसी किताब है कि जो आपको पीरियोडिकली आपको रिफर करनी पड़ती है. एक ही बार वो पढ़ी नहीं जाती है. वो ऐसे लाइफ में कुछ घटना घटती है तो आप यू रिफर, यू कीप इट देयर, यू अंडरलाइन, यू रीड, Yeah. you absorb, you interpret, you apply, and वैसा है. तो वैसे हाँ, अब मेरी बिगेस्ट है कि आई वुड से ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी. इंटेलिजेंस इज नोइंग वेन टू कीप योर माउथ शट, especially in today's world. Yeah. People don't want the truth. वो हमारा काम है दर्शकों को कुछ हद तक सच बताना, बट लोगों को नहीं चाहिए. वो कितने लोगों में क्षमता है सच सुनने की? बिल्कुल नहीं है. नहीं है. हाँ, तो बिना मतलब का, और फिर वो मिसकॉन्स्ट्रूड होगा. बट आई एम अ ग्रेट मैं एक दिस इज अ ग्रेट मुहावरा बाय द ग्रेट संत तुकाराम इन मराठी. इट इज निंदाकाचे घर असावे शेजारी. सो मेक योर डिट्रैक्टर्स योर नेबर्स. दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट. ये मीठे मीठे तारीफ करने वाले ना, उनको निकालो. हाँ, जो मेरी बुराई बोलो मेरे पीठ पे, ये बेटर. राहुल, कितने लोग ये सह सकते हैं? सह सकते हैं मतलब वो तो करना पड़ेगा. अभी देखो क्या है, आपको कौन से लेवल पे. कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज लाइक पॉलिटिक्स, इट्स अ फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. Much more than तो फिर politics. क्या बात कर रहे हो? You know, in my मैं corporate तो हाँ, stint- कुछ जानता नहीं हूं मैं वैसे, बट है हाँ. तो कॉर्पोरेट्स के ना तो पॉलिटिक्स में मैं लोहा समझता हूं, और मेरे को मैं वहां तक ही मेरी विचारधारा सीमित है. तो ये शतरंजबाजी ये है, क्या होता है. इसीलिए इंसान पढ़ो, ये इंसान से सीखो. कभी कभार औरतें ज्यादा सिखाते हैं. सेइंग इन लाइफ, you have a job, tell a man. Yeah. You want the job well done, tell a woman. ये मार्गरेट हैचर का सेइंग था ये. आपको we all know what that means, right? Yeah, yeah. तो हाँ, कॉर्पोरेट में अगेन इट इज फुल कॉन्टैक्ट. तो इसीलिए वो यू कैन नॉट बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर, यू कैन नॉट बी प्रोन टू इमोशनल हैंगओवर्स. Let's talk about that. हाँ, तो इमोशनल हैंगओवर्स मत खुद पर इतना डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली. टेक योर अपना काम सीरियसली लो, एंड डोंट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ. तरस मत, इतना मत खाओ. सबके प्रॉब्लम्स है, सबका ये है. नेक्स्ट, टुमारो इज अ न्यू डे. यू गेट मी. कंपेयर योरसेल्फ टू अ स्ट्रीट डॉग. वो अपने ऊपर तरस खाता है. उसकी लाइफ कितनी जो भी है, देखो ये सब रेन एंड ये सब है. सो यू कैन नॉट, यू बी लाइक दैट, टेक दैट एडज, यू नो, यूज दैट. यू कैन नॉट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ.
whatever fate has ordained you. Some people are born with golden spoon in them, but वो उसकी किस्मत है. Correct. उसकी किस्मत है, उसकी कमाई किस्मत है. So fate, but the vicissitudes of fate. Yeah. तो 99 से जीरो तो जीरो आप से कर सकते हीरो हो। रातों रात ये हो सकता है. इसलिए हम्बल रहो. मेरा ये मानना है, हम्बल रहो, अदरवाइज लाइफ विल थ्रस्ट ह्यूमिलिटी डाउन योर थ्रोट I'll teach you that एंड lesson. इट विल टीच यू ऐसा लेसन, ऐसा आपको मिलेगा. तो ऑलवेज बी हम्बल in your interaction with people. You're not great, you're nothing, you're dust. क्या अभी 30 साल में मैं चला जाऊंगा, आप कहाँ रहेंगे? क्या ये सब नहीं? What are we? Not to get philosophical, I'm not trying to be. Please be I'm philosophical. not This trying to podcast be. is about psychology and philosophy. I would love. I'm saying is that you Yes, I try get and it. make this place world a better, safer place. Yeah. Main वो है. Have some integrity, have some character. You know, दोस्त बनो, अच्छा बेटा बनो. You think people who are into workouts and fitness, I'm thinking from the point of view of youngsters, who actually watch this kind of a conversation. If you were to tell them and explain them, life तो आपकी उनको मालूम ही है. They become directionless. The difference is millennials have to work hard, Now, this generation already gifted with a great house. There is a great car standing. There is a good bank balance. Parents are doing well. They have worked very hard. I'm talking about millennial parents. So this generation, which is the youth, right? They don't have to do anything for basics to be right. अब जब basics का ही tension नहीं है, तो now it is about iPhone, next iPhone, समस्या है next ना, thing. समस्या तो है. बहुत बड़ी समस्या है. तो ये समस्या, ये किसने पैदा किया? ये संस्कार कौन डालता है? स्कूल टीचर नहीं डालती है, माँ बाप डालते हैं. और ये ऐसा मेरा मानना है कि द मदर इज द मॉरल पुलिस. बाप का तो रोल चलो बच्चे के 17-18 के बाद क्या करेगा, उसको सेट करे. बट लड़का हो तो वो माँ से ज्यादा है. तो ये मॉरल पुलिसिंग माँ करती है. But do you think 18th के बाद वाले बच्चे कुछ मतलब सुनने वाले दोनों हैं? पेरेंट्स का होना चाहिए, ऐसा नहीं है. Influence. That's why the only reason I feel you should get married is that if you want a child. Yes. Otherwise वो Why? भी हाँ कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आज के जमाने में आप देखो एवरी थर्ड फोर्थ इज एंडिंग अप इन डोमेस्टिक. तो वो तो अलग ये. बट बाय एंड लार्ज इट इज द पेरेंट्स हु पुट द character, who imbibe. See, children, what they see, they will mimic. They, Yeah. ये सिखाया जाता है. You learn it. You learn, it's like a habit. You learn habits. So there's lot to be समय done. पे आना, punctuality, treating people with respect, Correct. please, thank you, excuse me. The 3 most important words in the English dictionary, which you should learn in every language, in any world you want to go, no? ये आप ये तीन शब्द उनके भाषा में सीखो. मैं यूरोप बहुत घुमा हूं मैं It will come handy. तो हाँ कि प्लीज, थैंक यू और एक्सक्यूज मी. बट प्लीज और थैंक यू खास करके Important होता है. यहाँ पर कोई तो You have dabbled with several careers, right? There have been stints. नहीं, सेवरल तो नहीं है वैसे. Stint हुए हैं बीच में, एक्टिंग हुआ. नहीं एक्टिंग कभी नहीं किया. थोड़ा सा किया है? नहीं फॉर द रिकॉर्ड लेट मी पुट इट, मैंने कभी एक्टिंग में एक रियलिटी शो पे था. Correct. रियलिटी शो पे क्यों था? मेरे को अंतरराष्ट्रीय कुख्याति मिली थी. लेट्स बी वेरी क्लियर. और मेरा वहां पर उस रियलिटी शो पर रहना जाने का मकसद एक क्लैरिफिकेशन का मकसद था. गेम वहां पर बहुत कुछ कर सकता, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन. Robert Greene would have helped you a lot in that मैं show. वही कह रहा हूं. मैं सी we are capable of doing a lot. Yes. But we don't, until you don't act on your beliefs,
it is not, you get me, it doesn't constitute आप क्रिमिनल लॉ Moral पढ़ते हो ना, structure. करेक्ट? आपको मालूम है मेंस रिया और एक्ट्रेस रियर्स के बीच में आपराधिक मनोवृत्ति क्या होती है? अभी थोड़ा मैं Intention. टेक्निकल बन रहा हूँ, बिल्कुल. मैं भी शिष्य हूं, मेरा जी, ये जी. भी एक, हाँ, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रह चुका Yes, है ये yes. सीआरपी से ऐसे में, हाँ, गेटिंग मी, सेक्शन टू सेक्शन। तो वही है, कह रहा हूँ कि वो इट इज, यू हैव टू हैव इंटेंशन, योर इंटेंशन इज गुड, अगर नीति और नीयत आपकी अच्छी है, बट अगेन दैट इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। वो मेरा ऐसा मानना है कि जो सीधी वृक्ष है वो पहला कटता है, वो जो टेढ़ा वृक्ष होता है ना, उसको मैनेज कर, उसको सोचना पहले पड़ता है। छोड़ यार, थोड़ा डेंजरस है, उसको काटना है, वो पका हुआ आम है, मुंह मत लग। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। तो You यहाँ cannot- चैलेंज है, यहाँ चैलेंज है। आप हाँ। ज्यादा टेढ़े हो गए तो आप टेढ़े हो गए, सीधे हो गए तो पहले कट जाओगे। तो हाउ डू यू कीप इट इन Balance. कंटेक्स्ट इज अ वेरी, दैट इज नाउ समथिंग दैट इज subject to case specific interpretation in that moment. That means you have to, that is what it is said, that we are usually taking more than 35,000 decisions in a day. That's Yeah. what an average human is doing. Yeah. I have to pick up this mug is also a decision. Yes. Or I have to decide that no, I don't want to, I will continue talking. This is a huge decision Yes. that if I have to, I will be taking. But you have to decide to act. Ha. Making a wrong decision is better than making no decision. Oh, you believe in that? Yes. अरे but take a decision. Really? हाँ। But most of the people are afraid of taking decisions. तो वही तो कह रहा हूं मैं अभी, कर फेलियर, रहे हैं सुनो, ना? फेलियर इज पार्ट, यू हैव टू, अगेन दैट इज अगेन वो, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू बी एबल टू डील विद फेलियर। फेलियर ज्यादा सिखाता है, बट जा रही बात डिसीजन की, यू हैव टू, इट्स रादर देन मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन देन मेकिंग नो डिसीजन एट ऑल एंड लिविंग इन रिग्रेट। Procrastination. प्रोक्रेस्टिनेशन मैं कल करूंगा, या योर एनालिसिस पैरालिसिस, वो ज्यादा ज्ञान है, मैं उस हद तक, उसका कुछ हद तक शिकार हूं, इतना ज्ञान है और इतनी एनालिसिस पैरालिसिस का भी, मतलब वो कर लेता है कि वो डिसीजन ही कुछ नहीं ले पाता है। Because you are pursuing the right decision or perfect नहीं, decision. it is the perfectionistic trait. It's trying to be perfect. Again, it is a childhood emotional void. Can you help me understand that? तो ये अगेन गोइंग बैक इनटू द चाइल्डहुड कि इट शुड बी परफेक्ट। आई डोंट वांट, मेरे को मीडियोक्रिटी नहीं चाहिए। पर बच्चे ऐसे सोचते हैं। बच्चे ऐसे नहीं सोचते, ये एक हद तक वो बन जाते हैं ऐसे। कैसे बन जाते हैं वो भी जर्नी है। वो उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है, बट वो एक परफेक्शनिस्टिक, वो एक ट्रेट आ जाता है कि इट हैज टू बी परफेक्ट। मतलब वो फॉर्म टेक्निक परफेक्ट होनी चाहिए, यू नो, गाड़ी ऐसी ही पार्क होनी चाहिए, उसका टायर थोड़ा भी आउट नहीं हो, माई बेड शुड बी डन क्लीन, एक क्रम्पल नहीं होना चाहिए कपड़े के ऊपर। पर ये स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है। तो ये होता है, ये ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हो आप लोगों से। यार ये तो ऐसा, ये समय पे नहीं आया, ये अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं कमाई, तो ये आपकी एरोगेंस है, वो बेचारा उसकी नहीं है, उसका लो परफॉर्मेंस है, विच ही इज ओके विद। अभी वो मीडियोकर है। हाँ, तो वो ठीक रहेगा, है, वो ठीक है। या तो आप भी मीडियोकर हो सकते हो, बट आपको कुछ, आप ख्यालों का पुलाव पका रहे हो, मे बी ऐसे है। What is the difference between mediocre people and great people? We were just discussing this before we started recording. That is open to artistic interpretation And speculation, is and it? speculation. What is mediocre and what is good? I think Kamal Hassan said it very well. He said, in today's time, what is mediocre is misconstrued as extraordinary, and what is extraordinary is misconstrued as genius. Something to that level, if I've got it. See, mediocrity is rampant everywhere, all fields. Correct. Fitness trainers, lawyers, actors. And everybody has that degree of mediocrity in something that they don't specialize in.
मेरा Possibly. सवाल ये है कि जिस सब्जेक्ट पे मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, हाँ. मैं उस पर क्यों ज्ञान ठोकूं? वाई शुड आई जस्ट बिकॉज आई गेट सम फेक फेम? 4 दिन की चांदनी है और यू आर परसीव्ड एज अ सूडो सेलिब्रिटी. अरे सेलिब्रिटी सलमान खान है यार, उसको सेलिब्रिटी बोलते हैं. ये आप ज्ञान ठोक रहे हो. ये जो एक ये इसकी आई, ये इस पर आप ये प्रेस ये वाले करते, इस पर बाइट दो, इस पर ज्ञान दो, ऑटोमेटिकली आप एक्सपर्ट बनोगे क्या? मतलब मेरे को डेडलिफ्ट करने सिखाओगे? You very Performance in a- nicely huh? draw inferences and comparison between what happens on the gym floor and life. उसके बारे में I बताइए. like to draw metaphors Yeah. between the weight room and life. How I is like, it same and different? the weight room is life and life is the weight room. एक तरह का जिंदगी आपको स्क्वाड में बिठा देती है, स्क्वाड हाँ. जैसे, और आप कैसे उठते हो वो आपके ऊपर है. खड़े होते हो या बैठ जाते हो वो आपके ऊपर है. सेम थिंग डेडलिफ्ट में, या तो आप लेके वेट खड़े हो जाते हो, और आप या तो आपकी स्पाइन टूट जाएगी. तो लाइफ, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग स्पाइन. How does one build that? What is the deadlift of life? Okay. What that's a is the good- deadlift of life? Very Yeah. good question. Even I feel so. What is the deadlift of life? ये चलो ये तो थोड़ा उस पर अभी. I think deadlift of life is don't listen to advice, listen to confessions. Wow. Yeah. Very well said. ये लोग एडवाइस बहुत ठोकते हैं when they have not experienced anything themselves. There's no weight. They are not experienced anything. Very well said. Look what he's confessing through. जो आदमी ने उसने खुद गलती की है. Look at the life he or she has lived. So, I think Very beautifully put. That's why even inherently I feel that we should be more discussing failures and successes. yeah. Failures teach you, but then everybody is very scared to talk about their नहीं, failures. nothing feels like success. हाँ. सक्सेस It's के बाद done. उसके बाद? उल्टी गिनती चालू होती है. नहीं, बाद? सक्सेस के बाद और सक्सेस हुआ. हाँ. करेक्ट. अभी मतलब एक Seasons अभी तो change होंगे ना. हाँ, It's nature. अभी 100 करोड़ के ऊपर, फिर अभी मेरे को अभी 200 करोड़ है. मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग ना. Correct. और देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, Correct. बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड. तो कब फुल स्टॉप लगाना है लाइफ में, वो इंसान को आना चाहिए कि कब, वो कि वो तो- मांझा अब लपेटना चालू कर दे बेटा, हाँ. नहीं तो पतंगुल हो जाएगी. तो Time आ और गया वो गुल हो होने जाती का. है वो ऐसे. This happily brings me to the Rahul who is extremely spiritual. I have had my conversations with you deeply on your love for Hanuman ji. जी देखो, दिल में है. बिल्कुल. हाँ. इनके साथ कैसे कनेक्शन बैठा? वो एक नॉर्मल, एक नेचुरल ग्रेविटेशनल पुल है ये. Help me understand this na little more. मतलब ये फेट, it's a natural gravitational pull, and I like his teachings, his doctrines. जय हनुमान ज्ञान गुण के सागर, not शक्ति के सागर. He was the god of knowledge. शक्ति भी थी. Correct. And he teaches emotional resilience, which is the most important quality for today's, आप पूछते यूथ के लिए, emotional resilient. Highs and lows तो होते ही है. ज़्यादा lows होते और highs तो कम होती है लाइफ में इंसान की. I've seen kids breaking up with just one breakup at the age of 18. They feel everything is done because there's one भी breakup है. that has happened. है जो भी है. तो mental resilience के लिए क्या करना चाहिए? How do youth channelize their energy? Do you think it is good for them to think that fitness should be necessarily a part of youth? मेरा is बस not- करे. देखो अभी अगर मैं आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर द आर्म फोर्सेस. Yeah. अगर मेरी इवन एज अ टीनेजर, इफ आई हैड, आई कुड हैव इवन जॉइंड. आई थिंक
one foolproof way, like you have make compulsory military training for 2 years for guys and girls. In school, you mean? changes In school? in हाँ मतलब वो Somewhere in the educational discipline, side. हाँ discipline बिठाता है. It changes the perception to a human being's Correct. life. Correct. Like how you have like रशिया में है, इजराइल में है. तो आई थिंक वो कुछ हद तक अगर हो, इट मेक अ स्ट्रॉन्गर नेशन. इट्स अबाउट नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर, चरित्र बनाओ. चरित्र कैसे बनेगा? चरित्र बनाना, यू नो. सो ये nobody do it than the armed forces. Absolutely. Practically, if you ask for a solution. Otherwise, not everybody is blessed with, you know, disciplined, functional. What is definition of functional, dysfunctional? वो तो दूसरी बात है. Parents जो they teach you, you learn. They are your biggest teachers. So anybody who's watching you right now and wants to know, so we have a segment called The Guest Recommends. So Rahul's recommendation. Okay. Recommendation for what? बॉडी बनानी है, फास्ट बनानी है, इजी बनानी है. Yes or no? फास्ट बनानी है, इजी बनानी है, दोनों संभव नहीं है. बनानी है, संभव है. बनानी है, संभव है, स्लो बनानी पड़ेगी और मुश्किल है और बहुत मेहनत है. फास्ट और इजी कुछ नहीं है. दैट ओनली एग्जिस्ट इन मैगी. ये तो जो नूडल्स है आपके, बस वो वहां तक सीमित है. ये बॉडी बनाना और मेंटेन करना फास्ट और इजी के शब्दकोश में नहीं आता है. बॉडी के चीज में बॉडी बनाना रोज ट्रेनिंग करना पड़ता है. इट्स अ पेरिशेबल स्किल. आप करोगे नहीं, 3 वीक कितना भी बड़ा पहलवान होने दे, शक्ति कम होती है. यू हैव टू लाइक आप घर की सफाई रोज करते हो, सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर योर ईगो first. I would say the biggest is ego. Is ego. True. For human being. It comes automatically, easily. You don't have to do any Ego hard can work also for make it. you do good things. I'm healthy. But I would say it is more it can have negative. It has more ego, of negatives. So keep your ego in check. So training and exercise is one healthy way in keeping it in check, in, you know, achieving being spiritual. Training is mind or just body? I believe through the body you go to the mind. ऐसा मेरा मानना है. ऐसा नहीं कि माइंड टू द बॉडी. मेरा मानना है कि आप बॉडी के माध्यम के थ्रू भी आप ये इंटरेस्टिंग थॉट है, क्योंकि यूजुअली हम क्या बोलते हैं, नहीं, माइंड रेडी है तो हाँ, बॉडी तो में ये जाएंगे. रेडी ये एक तरह की तो कुछ हद तक की रेड इंडियन की फिलॉसफी है. दैट स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड. शरीर अगर ताकतवर और स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग. शरीर ही ढीली है और वो है नहीं, वो ऐसा, तो ये कैसे होगा वो. बट अगेन it should not be it's over simplification. Correct. Strength is of different many kinds. Yeah. There are many forms and manifestations of strength. Yeah. So-called strong men succumb to the most One emotional commonest vices. Yeah. Yeah. ओके. इसलिए देखो, असल जो पहलवान होते हैं, गुड ओल्ड पहलवानी, ये जिम कल्चर, ये इज नॉट, ये इट इज सॉफ्ट कल्चर. असल जो पहलवान होता है, वो पहली चीज क्या सिखाई जाती है पहलवानी में, वो यू नो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इवन जो बजरंगबली भी सिखाते हैं. इट इज यू नो सिमिलर. दैट इज व्हाई ही इज द गो टू गॉड ऑफ चॉइस. इज दैट अ मैन हैज टू हैव सेल्फ कंट्रोल. Correct. The most important quality for a man is self-control. Anger, खाना, लंगोट, self-control नहीं रहेगी. Otherwise, he can be played like a violin. Correct. Gluttony of life. Sense pleasures. हाँ. और कुछ हद तक हम सब शिकार है इसके. मैं बचपन में था, वो बटन पुश करो तो इमोशनल रिस्पॉन्स आ जाएगी, हील रिस्पॉन्ड. अभी इट्स आई रिस्पॉन्ड टैक्टिकली. यू कैन नॉट. अभी एज यू ग्रो ओल्डर यू अंडरस्टैंड कि
you know. So do you take time to respond when you say tactically? नो टैक्टिकली You मतलब sleep over it? वो मतलब माथे पर बर्फ और मुंह पे कुछ हद तक ताला अभी आज के जमाने में वो रखना पड़ता है. देखो ये यहाँ पर ऐसे बोलने वाली चीज है, बट वेन यू आर आउट Into it. इन द रियल वर्ल्ड एंड इफ यू आर ऑफ इन द पब्लिक domain of any sorts, you have to be that way. You cannot wear your heart on your sleeve and keep some of your opinions to yourself. The world doesn't care. And world is little sensitive also. Overly sensitive because you अभी क्या है, कीबोर्ड कमांडोस आ गए ना. हाँ. ये फेक प्रोफाइल्स है और ट्रोलिंग करेंगे या तो ये करेंगे, उसको बोलते हैं कीबोर्ड कमांडो का फिनोमेनन. Correct. Faceless keyboard commandos. सामने आमने सामने मुठभेड़ तो नहीं होने वाला है. वो भी हो सकता है, बट बोलेंगे ही वो अति मतलब वो हाँ उसकी भी वो गेटिंग मी. तो वो आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, क्रिएट एडुकेटेड सिनारियोज फॉर कुछ भी हो सकता है. Correct. और लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये हकीकत है. कब गधा पहलवान बनेगा Tables turn. Tables Times turn. change. You cannot say. So be good to nerds. You never know when they might be your boss also. Yeah. You know? Things are kabhi kabar. Things are strange. Queer things happen. Yeah. But don't sell yourself out in the process. That's a very important thing that you're saying. Don't sell yourself out. But there's something called as easy way out. And people tend to draw fast, it's the world of gratification, quick. So that is what you see, ये जो great it's called wisdom of delayed gratification. Delayed gratification मतलब I am willing to give up the now for the bigger picture, for the reward 1 year down the line, 2 years down the line. वो नहीं है. वो एथलीट्स में होते हैं, how they train for Olympic events. Exactly. वो रोज ट्रेनिंग करते हैं. With patience and peace and looking at the bigger picture and not just quick तो the gratification. 4 P's and 1 M of Rahul Bhatt, what are they? एक तो लाइफ में आपको पहली पी क्या चाहिए? पैशन चाहिए. Correct. लोगों में पैशन ही नहीं है. आप पैशनेट अब यू कैन बी पैशनेट फॉर एक्सरसाइज, फॉर म्यूजिक, फॉर पॉडकास्ट, फॉर योर वर्क. So passion is the genesis of genius. I'm repeating myself. मैंने ऐसे पहले बात किया है, but this is the mantra. Yes. Youth के लिए. Yes. Okay, what I would teach a young man. My job is to try and mentor a young man and make him a man. Okay, so the 4 P's तो ये है passion. Yeah. फिर आती है perspiration. Correct. पसीना बहाना पड़ेगा. हाँ. हार्ड वर्क करनी पड़ेगी. थर्ड पी है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. 4th पी है परसिवियरेंस. एंड द लास्ट इज द एम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एक की किस्मत में नहीं होता है, इज द मेंटर. और आज के जमाने इफ यू आस्क मी व्हाट वी आर मिसिंग मेंटर्स. गुड मेंटर्स की कमी है, अप्रचलित हुए. एक जमाने में गुरु शिष्य की परंपरा होती थी. Correct. आज वो नहीं है. There are no mentors. That's it. It's very difficult to find mentors, I believe. People want. हर एक की किस्मत में, अगर आपके किस्मत में है, आप मेंटर कहाँ पर क्रिएट करो, वो क्या करो. When the student is ready, the master appears. Correct. That's what one has to think in life. You raise those positive affirmations, you try your best, but you need a mentor because you cannot practically make so many mistakes yourself and bounce back. Correct. You need somebody. Now see, I have some training wisdom, I have some life experience. Yeah. I cannot wait for he cannot commit a mistake, pay Learn the repercussions. Yeah. And either are ya par and then expect to bounce back. Some people don't bounce back. Most don't. Yeah. Life is not fair. Life is not so, so a mentor is very important. Be it your parent, your father or whoever, you find a mentor. To find that. But mentors किधर है अभी? Mentors है ही नहीं.
मेंटर्स की कमी है बट आई एम जस्ट सेइंग मेरे को तो वो एकमात्र कभी मेंटर मिला नहीं है जो मैं जैसे मैं 100 नंबर डायल करूंगा वैसे मैं अपने मेंटर को फोन करूंगा, वैसा नहीं है। मेरे को तो सेल्फ रिलायंट रहनी पड़ेगी हमेशा। मेरा मेंटर था मेरा लोहा। है अभी भी? हाँ है, अभी तो अभी खुद का मेंटर हूं ना मैं। हाँ. भी लोग मेरे को फोन करते हैं, मतलब मतलब ये अगर But there is good experience now. There's enough experience. it's good experience, it's bad experience, whatever it is experience. It's learning. Yeah. Correct. It is living life truthfully, having no fear, living and being जो भी है, but and being self-reliant, Correct. not having delusions of grandeur. You know, How do you feel at this moment in your life, like this time at 43? If you just reflect back and how you are looking at your life ahead, what is the feeling today? well, it is not begun. That's a growth mindset speaking. Again, I don't want to. काम बताएगा आगे क्या करूंगा, कौन हूँ, what my place in this world is. I have a very specific. I am under the VVIP protection of the Lord Bajrang Bali. Wow. Yes. Correct? Yes. I firmly believe that. नहीं तो मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होता, यहाँ पर बैठा नहीं होता। और ये मेरी बिलीफ है एंड दैट इज द वे आई रन माई लाइफ एंड आई एम जो है व्हाटएवर इट इज एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बस एवरीथिंग इज अ न्यू डे Yeah. एंड यू हैव टू फेस लाइफ बट द बेस्ट इज येट टू कम। तो ये आप लाइफ आपको तैयार करती है, वो परिपक्वता आती है ना। जब तक पकेगा नहीं तो नीचे गिरेगा कैसे कैसे fruit? मालूम पड़ेगा? यू नीड अ मैन नीड्स लाइफ एक्सपीरियंस विथ ऑल सिस्टम्स, द 4 स्टेट्स। प्रेस हुआ लाइक हमारे दिस थिंग, वो तभी वो आप हैंडल कर पाओगे ना। देर आर लॉट ऑफ इंट्रिकेट थिंग्स जो मैं यहाँ पर ऐसे खुले बता नहीं सकता हूँ, शोभा नहीं Correct. देता है, बट यू गेट मी। तो वो I only firmly believe that's why you want to learn fishing, you don't ask the fish, you ask the fisherman ना। True. तो ये मेरा है। Rahul ji, he who has a why to live can bear with almost anyhow. What a beautiful quote of Frederick. Nietzsche. फ्रेडरिक नीत्शे, हाँ। Yeah. मेरा भी पसंदीदा। Pasandida. That's why we vibe together. Your extempore on life's philosophy. I really want to know that. Extempore on life philosophy. First, be humble. Be the hardest worker in the room. Be patient. Be respectful to your elders. Does philosophy help in life? Philosophy can help you go through life with a little more efficiency. As an ally. As an ally, as a strategic ally. In the absence of a But- real mentor, you're saying. Nothing replaces a real mentor. You cannot replace it. It is non-negotiable. In life you have negotiables and you have non-negotiables. Yeah. Okay? Yeah. As a professional, I have a non-negotiable price. Which I'm just saying, जो भी है, because the day when you negotiate, you are compromising. तो Correct. same thing life की नियम होते हैं. Nothing replaces a real life mentor. Books cannot replace a real life mentor. That real life mentor has already experienced all those teachings, summaries of those books, and already applied in a practical, realistic fashion, and it has turned out to be a success. That is why he's a mentor. So I firmly believe that books do not, no matter whatever philosophy, Marcus Aurelius, meditations of ये सब है कुछ भी, they can help you get through life, comfort the fall, but no, not a real life mentor. When the chips are really down and when you need that, कि बेटा क्या करना चाहिए, क्या करूँ, जब आप हकीकत में तो मेंटर होता है।
But the truth be told, as you rightly said, mentors हैं कहाँ? तो उस टाइम पे, है डिफिकल्ट टाइम पे, अभी जैसे आपके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में डिफरेंट मेंटर्स थे, मेरे जैसे वेट ट्रेनिंग में हद तक मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कपाड़िया, मिस्टर कपाड़िया को मैं अपना वेट ट्रेनिंग मेंटर माना करता हूँ। फिर बाकी चीज़ों में मैं बहुत सारे लोगों से सीखा हूँ मैं। आई हैव टेकन, यू कीप टेकिंग अ ड्रॉ फ्रॉम एवरी ह्यूमन बीइंग। यस। सो दैट इज वॉट यू नीड टू डू, कि आप हर एक इंसान से लेते रहो और हर एक सिखा सकता है। और हर एक वन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लीव अ पर्सन बिकॉज ही कैन टीच यू वन थिंग अबाउट लाइफ दैट यू डोंट नो, प्रोवाइडेड यू डोंट कीप ईगो That I know. that you know it all, and you're more of an active listener and you listen with all your senses. Then I think you learn. Otherwise it is What is your message for the lazy people? lazy people का क्या, आलस्य मृत्यु है, वो लिखा होता है ना अखाड़ों में बड़े मोटे अक्षरों में, आलस्य मृत्यु है। इट इज द सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ। इट इज एन इविल बीस्ट। But in the time when Netflix and Jio and Amazon Prime is a very serious part of everyone's life. How does one Netflix get can be that part deep? of your life, but that doesn't mean you're lazy. You can still, there are people who like watching Netflix and who live in the social fabric and do everything. You don't need to live in a akhada or in a cave or in some, but and whatever. But you can still not, you can, I mean, laziness per se, because then that is carried over to all areas of your life. Laziness. ऐसा मेरा मानना है। अगर वो देखो जिम में आलस दिखा रहा है, अच्छा, बट ऐसे बहुत सारे होते हैं जो जिम में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बाकी टाइम पे आलसी होते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं है। तो ऐसा भी एक्सेप्शंस है, जरूरत है। बट बाय एंड लार्ज इफ अ गाय इज हार्ड वर्किंग इन द जिम, समय पर आता है, इज अ हार्ड वर्कर, ये छोटे छोटे चीजें, हिज शूज आर क्लीन, ये बहुत ये छोटे छोटे चीज आदि के बारे में बहुत मालूम करता है। ही इज डिसिप्लिन्ड, ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। So if we were to decode your life philosophy in this podcast today? आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस पूनम। मेरी लाइफ, आई डोंट थिंक आई हैव येट अचीव्ड दैट माइलस्टोन इन माय लाइफ टू गिव मैं ज्ञान की मेरी ये लाइफ की फिलॉसफी है। मैं अभी तक मैं नहीं मानता हूँ कि मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ। और देखो क्या है, अचीवमेंट्स और रहने चाहिए ऑन अ वर्ल्ड क्लास लेवल, तब आप हकदार बनते हो ज्ञान ठोकने का। ऐसा मेरा मानना है। I don't find myself capable to be able to give life philosophy. Let's say you're being humble. Okay, so Rahul, the last segment is about what Rahul recommends to the world, right? Take care of your body. It's the only place you have to live. Jim Rohn, what's your view? Take care of your body. It is the only place you have to live. Yes, correct. 100% correct. He is right. He has experienced this on a practical level. It's correct. I believe this testament. And through your body, you achieve good mental health, which is I would say, the most important thing. Yeah. What was the biggest myth you had to break for Amir Khan during his transformation? Just anyone. Myth. Yeah. कि प्रोटीन से किडनी डिस्फंक्शन होगी। Really? हाँ, उनका मानना था कि प्रोटीन ज्यादा खाने से नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ेगी और इसलिए वो वीगन थे। फिर वो उन्होंने वीगन छोड़ के फर्स्ट क्लास प्रोटीन और प्रोटीन सप्लीमेंट्स और मतलब एग और ये चिकन वो खाने लगे। वो सामन, एग सामन, हाँ। तो वो एक मिथ थी वो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कैन बी इज बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन डाइट्स।
You could just give little science behind it to us. नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब वो किडनी डिसफंक्शन, हाँ. वो होती है टिपिकली बॉडी बिल्डर्स में और जो स्टेरॉइड्स लेते हैं और जिनकी ईयर्स टू ईयर्स इनकी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होती है. Okay. तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर मोटा मोटी लीड्स टू अ किडनी डिसफंक्शन. यस. Not a layman who's having अभी one scoop of protein. नहीं अनटिल एंड अनलेस आपको जेनेटिक कोई प्रीडिस्पोजिशन नहीं है किडनी डिसफंक्शन की. बट किडनी डिसफंक्शन इज वेरी सीरियस बिकॉज अप टू 95-98% आपको मालूम भी, आपको कुछ सिम्टम्स नहीं मालूम पड़ते और फिर सीधा आप डायलिसिस पे जाते हो तो इट्स वेरी स्कैरी. और डोनर नहीं मिलता है, unlike the liver which has the power of regeneration. Refurbishing, yeah. So how does one, like, for vegetarians, it's just supplements which becomes a source, or a paneer, that's all. इसीलिए वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा आपको प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पर आपको डिपेंडेंसी है. और कैसे आप चेक में रखोगे, आप ब्लड टेस्ट करो. ओके. आपकी RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, EGFR, ये बेसिक पैरामीटर्स, उसमें अगर कुछ रेड फ्लैग्स हुई, गेट रेगुलर ब्लड टेस्ट डन. Say 6 months. Just because, 6 months अगर देखो, if you are praying Russian roulette by using performance enhancing and all, then you have to do it in a much more clinical, controlled. But Sure. by and large, Is fat loss really 70% diet and 30% exercise, or is that just a myth? नहीं 50-50 है. 50-50. ऐसा मेरा ऐसा नहीं मानना है. दोनों. How do you train mental discipline when motivation fades? What's your strategy to stay consistent? अभी कंसिस्टेंट कैसे रहे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ये विजय है, फिर वो जो लड़का मेरे को मिला फ्लो पे, उनका जो ट्रेनर, जो पावर लिफ्टर है, यंग है, 27, इतना अच्छा उठाता है, हम्बल बिगिनिंग्स, कल्याण का लड़का. ऐसे टैलेंट के साथ आप ट्रेन करते रहो तो इट गिव्स यू अ गुड स्लैप ऑन योर फेस कि ऑल्सो यू लर्न समथिंग न्यू. you're infected by their enthusiasm. Yes. ये The energy rubs on you. हाँ, that is my way, I would say. For someone with a busy schedule, kids, career, chaos, what's the most time efficient full body workout that you recommend? स्क्वाट और डेडलिफ्ट करो, या तो बिग 3 करो. स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट करो. That's it. बस स्ट्रक्चरल कंपाउंड एक्सरसाइजेस. ये आइसोलेशन मूवमेंट्स करने की जरूरत नहीं है. ये 3 मारा आपने विथ प्रॉपर पीरियोडाइजेशन, Yeah. प्रॉपर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत हो गया. हफ्ते में 3 बार किया. यू डोंट नीड टू बी लिविंग इन द जिम फॉर 6 hours. That's awesome. वो कुछ नहीं करना है. हाँ. How do you break through a fat loss plateau? Most people panic when the scale stops moving. What should you do instead? No, you call बिल्कुल. It's matter of education and awareness. It is a matter of your waist inches. जो fat loss है, हाँ. Scale is a very wrong barometer to your progress. कि मसल जा रहा है, फैट जा रहा है, नहीं. अगर आप वो, जैसे विजय भी बात कर रहा था, बोल रहा था, वो सुपर कॉम्पेंसेशन, क्या होती है वो, रिकॉम्पोजिशन. तो वो होती है जब आपकी बॉडी फैट कम होगी, आपकी वेस्ट कम होगी, आपको बॉडी फैट घटेगी. हाँ. और वेइंग स्केल का कोई ताल्लुक नहीं. कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड मसल. अमूमन पूरी दुनिया तो वहीं उस पे ही खड़ी होती है डेली. बट गलत है ना. गलत है ना. मैं बोलता शीशे से जाओ, गो बाय योर जीन साइज, द वेस्ट साइज. That's a better marker. डेक्सा स्कैन करो बॉडी फैट, अगर आपको यू वांट टू गेट क्लिनिकल, गेट टू नो. Correct. Do you recommend intermittent fasting for fat loss or performance? I recommend anything that works for you. You have to find what works for you. Yeah. That is the very important thing. How you will respond to a diet, he will not respond to a diet. Nothing is cookie cutter. Intermittent fasting is very easy in execution. Very simple to execute. You're not counting ये सब meals नहीं है, and it works in the real world. It gets results. आपके लिए काम करता है, नहीं काम करता है. हाइपोग्लाइसीमिया होती है, किसी को नहीं होता है. परफॉर्मेंस
depending abhi up. Some people perform, some people don't perform. It's a very individual thing. That's why I believe we still don't have the culture of having educated trainers to be training you when you are training in the gym. People just think, I keep saying this, people just think that, okay, it's like you calling for the best of the scissors and cutting your hair yourself. Okay, that's In a the good gyms, analogy. in the gyms, people think Yeah. like that. I have a gym membership, I can go and just put some plates and work out and come back. I very firmly believe, what is your thought that you're actually playing with your body? This is a science that cannot be, there is no keto diet that can work on mass population. There is no intermittent that can work. Every genetics, living, lifestyle, what you're eating, not eating, what are your stress levels. So, That is why finding the right coach, I would say trainer ne coach, yes. कोच इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैंने मेंटर्स के बारे में बात किया, गुड कोच is somebody who has an overview of all things, All the aspects. and when needed makes a referral to a nutritionist, makes a referral to an endocrinologist, Correct. makes a reference to a psychiatrist. A good coach is your psychiatrist, your friend of sorts, Yeah. and your trainer. तो कौन से डॉक्टर पे अभी यार इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इसको पहले साइकियाट्रिस्ट पे जाने की जरूरत है. पहले वहां पर जाके वो हल करके आए, फिर ट्रेनिंग करे. तो ये Only a third person can understand this. कोच में वो भी अवेयरनेस आनी चाहिए. Awesome. Last question. Which supplement do you genuinely trust and which one is totally overhyped? टोटली ओवर हाइप तो कितने सारे हैं. मेरे अंदाज में वे प्रोटीन और क्रिएटिन और कैफीन से अलावा बाकी सब Internet ओवर भरा हाइप, पड़ा है. सब ओवर हाइप्ड है. ये HMB, ये वो अभी कितने सारे आएंगे, सब ओवर हाइप्ड है. बस यही है. वेरी फ्यू सप्लीमेंट्स दैट वर्क, मोस्ट सप्लीमेंट्स दैट don't work. Correct. So verify with a qualified person who can guide you. Good guy. Again, finding the right Right. nutritionist, ये जो भी है, very important. Procuring the products from the right genuine source. Yes. Counterfeiting इतनी बड़ी समस्या हो गई है सप्लीमेंटेशन की, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की. क्या बताऊं मैं आपको यहाँ पर. Especially in India. हाँ, Correct. बहुत हो गई है. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और it's all about वही about knowing who to go to for what advice. What advice? That is very important. The last bit. Do you meditate? नहीं. इसीलिए समाज पूछा समाज मैंने. आता हूँ. ये मेरे में, मैं मेडिटेट नहीं करता हूँ. आप आंख बंद करके बैठते नहीं है ओ नहीं, अपने साथ. नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ. मैं मेरे से वो नहीं होता. But I think when you're focusing in the gym and मेरी lifting so मेडिटेशन heavy. क्या है, उठाना. मेरी मेडिटेशन क्या है, गाड़ी चलाते हुए हिंदी गाने में गाता हूँ मैं जोर से. वो एक तरह की मेडिटेशन है. हंसना, जो मैं बहुत कम हंसता हूँ, अब थोड़ा ज़्यादा हंसने लगा हूँ, वो एक तरह की मेडिटेशन है. बट मेडिटेशन, वो शवासन, वो करना पर से मैं उस लेवल तक अब तक पहुंचा नहीं. मैं गॉड विलिंगली पहुंचूंगा, Sure. बट अब तक नहीं. But I loved that you smiled and laughed आपने- towards the that end is- of the that- show. आपने किया. Thanks Poonam. Thank you Thanks so for- much, thanks for Rahul having ji. me. God bless. so Thank you. much. Keep up the great Thank work. you for your Thank you. time. Thank you. Thank you. And I'm so honored Thank to you. be God sitting bless. with Thank you. you. Thanks. Thanks. Thank you guys. Thank you. Thank you.